Good evening, Ji. Write down the heading Lewis representation. Lewis representation. Write down the heading Lewis representation. ये अच्छा टॉपिक है जो आज करने जा रहे हैं. Lewis representation of simple molecules. Lewis representation of simple molecules and ions. Lewis representation. Lewis representation. Lewis representation of simple molecules. Simple molecules and ions. Lewis representation of simple molecules and ions. In simple words, Lewis structure. In simple words, Lewis structure. In simple words, Lewis structure. कुछ रूल्स हैं, पहले कुछ रूल्स लिखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. लिखो. स्टेप 1, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना. स्टेप 1, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ. स्टेप 1, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स. Step 1, calculate the total number of valence electrons of the atoms present. Calculate the total number of valence electrons of the atoms present. Calculate the total number of valence electrons of the atoms present. Rule 2 या step 2. Step 2 या rule 2 कुछ भी लिख सकते हो आप लोग. इसमें लिखो if the species is an anion. If the species is an anion, add number of electrons. If the species is an anion, add the number of electrons. If the species is an anion, add number of electrons equal to the units of negative charge. If the species is an anion, add number of electrons equal to the units of negative charge. And if the species is a cation, subtract number of electrons equal to the units of positive charge. Subtract number of electrons equal to the unit of positive charge. Subtract equal to the units of positive charge. Full stop करके. This gives the total number of electrons. This gives the total number of electrons. This gives the total number of electrons to be distributed. This gives the total number of electrons to be distributed. दो रूल्स हो गए. दोबारा सुनिए. Step 1 या rule 1, calculate the total number of valence electrons of the atoms present. Step 2, if the species is an anion, add number of electrons equal to the units of negative charge. And if the species is a cation, subtract number of electrons equal to the unit of positive charge. This gives the total number of electrons to be distributed. Step 3, select the central atom. Select the central atom. Select the central atom. ब्रैकेट में आप लिख लो विच इज जनरली द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. थर्ड रूल लिखो, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम इन ब्रैकेट विच इज जनरली द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड ड्रॉ द स्केलेटन. ब्रैकेट क्लोज करने के बाद. स्टेप 3, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम इन ब्रैकेट विच इज जनरली द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंड ड्रॉ द स्केलेटन स्ट्रक्चर बाय इंटेलिजेंट गेस. एंड ड्रॉ द स्केलेटन स्ट्रक्चर by intelligent guess.
गैस करना। टू इंडिकेट विच एटम, टू इंडिकेट विच एटम, टू इंडिकेट विच एटम इज लिंक्ड टू विच अदर एटम, टू इंडिकेट विच एटम इज लिंक्ड टू which other atom. I repeat, select the central atom which is generally the least electronegative atom and draw the skeleton structure by intelligent guess to indicate which atom is linked to which other atom. Also remember that to indicate which atom is linked to which other atom. Also remember that, इसी में है, also remember that hydrogen and fluorine, also remember that hydrogen and fluorine usually occupy terminal position. Also remember that hydrogen and fluorine usually occupy terminal position. जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन होते हैं वो टर्मिनल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं. अभी आप रूल लिखो, समझ में आएगा जब हम स्टार्ट करेंगे. तो ऑल्सो रिमेंबर, फ्लोरीन बोला था. ऑल्सो रिमेंबर डैट हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, क्लोरीन नहीं, फ्लोरीन यूजुअली ऑक्यूपाइड टर्मिनल पोजीशन. ठीक है जी. फोर्थ लिखो, फोर्थ और लास्ट. पुट वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्थ रूल, पुट वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, put one shared pair of electrons between every two atom, not two atom, between every two atom. Put one shared pair of electrons between every two atoms to represent a single, to represent a single bond between them, to represent a single bond between them, to represent a single bond between them. Full stop करके use the remaining pairs of electrons, use the remaining pairs of electrons, use the remaining pairs of electrons either for multiple bonding, use the remaining pairs of electrons either for multiple bonding, or to show them as lone pairs, either for multiple bonding or to show them as lone pairs, or to show them as lone pairs, keeping in mind that octet of each atom is completed. Keeping in mind that octet of each atom is completed. ठीक है जी. अब इस अप्लाई करते हैं. सबसे पहले आपने ड्रॉ करना है CO का. देखना ज़रा ध्यान से कैसे करना है. बहुत आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है. ठीक है. सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे. सबसे पहले आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे. शॉर्ट फॉर्म में TVE बोल सकते हो. ठीक है ना. TVA मत बोल देना. TVA, लोकी सीरीज, टाइम वेरिएंस अथॉरिटी. ठीक है. TVE टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कितने होते हैं कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन? अरे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, 2, 4 हो गए ना. कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएगा. तो 4 + 6 10 आ गया. अब आपने क्या करना है, इस 10 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है CO के अराउंड, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कार्बन और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. तो तरीका क्या है देखो भाई, आपको थोड़ी ना पता है CO के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा. आपको अभी नहीं पता, इतनी प्रैक्टिस आपको अभी नहीं हुई है कि आप वर्बली मुझे बता दो, आपको याद हो जाए
कि CO के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं। तो अभी तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड पेयर रखो। तो 10 में से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2। बस 10 थे ना, आपने 10 इलेक्ट्रॉन इनके आसपास और इनके बीच में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, बॉन्ड भी बन जाए, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए। तो आपको नहीं पता ना कितने बॉन्ड बनते हैं इन दोनों के बीच में, पता हो तो बात ही अलग थी, फिर तो खुद ही लिख देते इलेक्ट्रॉन्स डालकर। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम एक बॉन्ड पेयर से स्टार्ट करेंगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मैंने एक बॉन्ड पेयर रख दिया, 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने बचे, 8। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 8 में से 6 भी चले गए। अब पहले आपने 10 में से 2 घटा दिए बॉन्ड पेयर रख के, कितने बचे, 8। 8 में से आपने 6 यहां रख दिए, कितने बचे, 2। 2 को यहां रख दो, 0 हो गए। अब ऑक्टेट चेक करते हैं। कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का हुआ, यानी कि ये स्ट्रक्चर गलत है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका नहीं है। तो मिनिमम एक बॉन्ड पेयर रखना था, इससे तो बात बनी नहीं, 2 बॉन्ड पेयर रखते हैं। कार्बन ऑक्सीजन अब 2 बॉन्ड पेयर रख रहे हैं। तो 10 में सब कितने चले गए, 4, कितने बचे, 6। अब 6 रखेंगे। तो 1 2 3 4, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, देख लो आप, 4 भी चले गए, 2 बचे, 1 2। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, देखो 6 है, ये देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी गलत है, क्योंकि हमें दोनों एटम के ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं, एक का नहीं करना, हमें सबको करने हैं, सॉरी सबके करने हैं। कार्बन अब 3 रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। 10 में से कितने जा चुके हैं, 6, कितने बचे, 4। 1 2 1 2, देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी कि ये करेक्ट स्ट्रक्चर है, ये करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर है। तो अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करके बनाना चाहते हो तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में, सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर, कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर। कुछ आया समझ में, किसको नहीं समझ आया, किसको नहीं समझ आया, बोलो, ठीक है। मिनिमम पहले एक बॉन्ड पेयर रखना है, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऑक्टेट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए दोनों एटम के। फिर अगर एक बॉन्ड पेयर से बात नहीं बनती है तो 2 बॉन्ड पेयर रख देंगे, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने का मोटिव क्या है, दोनों एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। मान लो इससे भी बात नहीं बन रही, तो फिर हम लास्ट ऑप्शन ये ट्राई करेंगे। 300 का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं है, होता है और बताया नहीं है, वो है भी नहीं कोर्स में आप लोगों के, ठीक है। तो 3 बॉन्ड पेयर रख दिए बीच में, तो बचे हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इस केस में कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना, कॉपी करो। अब ये करना इसके बाद, ठीक है। SCN का जल्दी से करो, हो जाना चाहिए 1 मिनट के अंदर। SCN करना है, सॉरी CO3 माइनस करना है, जल्दी करो। देखो हाइड्रोजन विल ऑलवेज ऑक्यूपाई टर्मिनल पोजीशन। अब हाइड्रोजन को चाहे इधर रख दो चाहे इधर रख दो, ठीक है ना, ये लो यहाँ रख दिया। हाइड्रोजन कन्फ्यूजन तो खत्म हो गई। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है, इन दोनों के लिए रूल क्या बताया था मैंने, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो सेंटर में चला जाएगा। कार्बन नाइट्रोजन में कौन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है कार्बन होता है, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है जी। ये स्केलेटन बनेगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, कार्बन के कितने होते हैं 4, हाइड्रोजन के कितने होते हैं, सॉरी नाइट्रोजन के कितने होते हैं 5, कितना आ गया, फिर से 10 आ गया। तरीका क्या बताया था, पहले
सब एटम्स के बीच में एक एक बॉन्ड पेयर रखो। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, एक बॉन्ड पेयर यहां रख दिया, एक बॉन्ड पेयर यहां रख दिया, है ना। 10 में से कितने चले गए? 4 चले गए, बचे हुए रखने। अब देखो यहां पे पॉइंट ऐड करवा रहा हूं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये दोनों मोनोवैलेंट एटम है, ये दोनों मोनोवैलेंट एटम है, इनकी वैलेंसी 1 होती है, ये एक बॉन्ड बनाते हैं, ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो आप अगर सोच रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखने की तो कोई पॉइंट ही नहीं है, गलत है वो, आप यहाँ और यहाँ रखोगे बस, ठीक है। तो 10 में से कितने चले गए? 4। 1 2 3 4 5 6 खत्म हो गए इलेक्ट्रॉन, मेरे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बेचारा कार्बन मारा गया, तो ये गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इधर सुनो, इधर सुनो, हाइड्रोजन इज अ मोनोवैलेंट एटम, आप यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर से ज़्यादा रख ही नहीं सकते, तो कहाँ रखोगे? यहाँ रखोगे। जो पॉसिबिलिटीज़ है वो यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे, यहाँ तो कर ही नहीं सकते, यहाँ तो दरवाजे ही बंद। अब तो हाइड्रोजन, अब 2 बॉन्ड पेयर रख रहा हूँ, तो नाइट्रोजन लिख दिया। 10 में से कितने चले गए? अब 6, 4 और 2 6 चले गए, 4 बचे। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, बट कार्बन फिर से मारा गया। कार्बन के देख लो 6 ही बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी गलत है। तो तीसरा केस क्या है? तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? 3 बॉन्ड पेयर रख दो यहाँ पर, हाइड्रोजन, कार्बन, 1 2 3 4 5 6। 10 में से कितने चले गए? 8, कितने बचे? 2, यहाँ रख दो। नाइट्रोजन का ऑक्टेट डन, कार्बन का ऑक्टेट डन, हाइड्रोजन का डुप्लेट डन, ये करेक्ट है। यानी कि मेरा आंसर आ गया है हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है। क्या नहीं समझ आया? करो, ये करो। CO3 2-। कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नहीं चलो पहले टीवी निकालते हैं, टीवी तो निकाल लें, TVE, TVS में बोल देना कहीं से, फिर TVS और TVA बोल दो। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 6, और 2 भी तो है, माइनस का 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो 4 3 6 18 + 2 24, आपने 24 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ये है खतरनाक मामला। कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन 2.1, ऑक्सीजन 3.5, तो कार्बन है ना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन सेंटर में, ऑक्सीजन 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 यहाँ पर, सही है। और पूरे पे 2- कर दो। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को, अगर O- होगा तो एक बॉन्ड बनेगा, ध्यान रखना, O- हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा और O आपका डबल बॉन्ड बनाता है। O2- तो या फिर वो तो आयनिक कंपाउंड में चले जाओगे ना, O2- कहाँ से आ जाएगा? O2- जैसे देखो O2-, अब ये बॉन्ड किससे बनेगा भाई? अब तो ये अट्रैक्शन ही करेगा किसी के साथ, ठीक है ना, तो वो आयनी बॉन्ड में चला जाएगा। और इसमें भी एक केसेस बन जाते हैं, मतलब या तो ये डबल बॉन्ड बना ले, नहीं तो एक सिंगल इधर से बना ले, एक सिंगल इधर से बना ले, है ना। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, ऐसे भी केसेस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो चलो इधर आ जाओ वापस। 24 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं आप लोगों ने, ठीक है, करते हैं स्टार्ट। मैंने क्या बोला था? मिनिमम अब बोला करो ना मुंह से, मिनिमम बोल रहा हूं, बोलो मिनिमम। हाँ, मिनिमम 1 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ध्यान से सुनना कैलकुलेशन। 24 में से कितने चले गए? 6, कितने बचे? 18। अब आपने 18 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1 2 3 4 5 6, 18 में से 6 गए, कितने बचे? 12 ही बचे ना। 1 2 3 4 5 6, 6 बचे हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 बचे हैं।
ऑक्सीजन का मामला सेट हो गया है, ये वाला ऑक्सीजन भी सेट हो गया ये, और ये वाला ऑक्सीजन भी सेट हो गया है, सेट हो गया ये, ठीक है। बट कार्बन बेचारा सेट नहीं हो पाया, कार्बन बेचारा सेट नहीं हो पाया, तो ये गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, आपने सबके बीच में एक एक बॉन्ड पेयर रखा ना, अब मैं एक जगह 2 बॉन्ड पेयर रख लेता हूँ, पॉसिबिलिटी तो यहीं से स्टार्ट करूँगा। तो कार्बन, फिर से ऑक्सीजन, 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 2 माइनस, क्योंकि 2 माइनस, मैं आपको माइनस साइन नहीं बता रहा अभी कि माइनस साइन किस ऑक्सीजन पर है, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। और माइनस साइन किसी ऑक्सीजन पे होता भी नहीं है, रेजोनेंस का भी कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए मैं माइनस साइन ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब पूरे मॉलिक्यूल पे 2 माइनस है। मैं आपको जस्टिफाई नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि माइनस साइन किस ऑक्सीजन पर है, कार्बन पे तो आएगा ही नहीं माइनस साइन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं 2 बॉन्ड पेयर रख रहा हूँ, ठीक है, एक बॉन्ड पेयर और एक बॉन्ड पेयर। 24 में से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 2 4 4 और 8, 24 में से 8 चले गए, 16 बचे, सही है ना। हाँ 16 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 10 बचे। अरे 16 में से 6 चले गए, 10 बचे ना। 1 2 3 4 5 6, 10 में से 6 चले गए, 4 बचे, 1 2 3 4। ये वाला ऑक्सीजन सेट हो गया शुभांकर, ये वाला ऑक्सीजन भी सेट हो गया, और ये वाला ऑक्सीजन भी सेट हो गया शुभांकर, कार्बन भी सेट हो गया आपकी बार, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट है। अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, कार्बन ऊपर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और लोन पेयर दिखा दो। ये आना ज़रूरी है क्योंकि अगला टॉपिक हमारा है फॉर्मल चार्ज, ये आना ज़रूरी है, लोवेस्ट स्ट्रक्चर्स आना ज़रूरी है क्योंकि अगला टॉपिक है फॉर्मल चार्ज, ठीक है जी। ये सेट हो गए, ये तीनों ऑक्सीजन सेट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे बेहतरीन तरीके से, O3 की तरफ चलते हैं, O3 की तरफ। ठीक है जी, ये आपको कौन सा एग्जाम्पल था, 3rd। 4th आपने करना है O3, 5th आपने करना है, 5th आप लोग करो NH4 पॉजिटिव करना, NH4 पॉजिटिव। चलो करो फटाफट से, आज ही करना है। O3, लेट्स स्टार्ट O3। तो टीवी फाइंड करो पहले आप। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 3 6 18, 3 × 6 बनेगा 18। अब आपने 18 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने तरीका आपको बता ही दिया था, पहले मिनिमम 1 रखेंगे। 18 में से 4 चले गए, 14 बचे, 1 2 3 4 5 6, 14 में से 6 गया, 8 बचा, 1 2 3 4 5 6, 2 बचे हैं, वो यहाँ रख दो। तो ये वाला ऑक्सीजन तो सेट हो गया है, ये वाला ऑक्सीजन भी सेट हो गया, ये वाला ऑक्सीजन सेट नहीं हुआ भाई, तो गलत हो गया, यानी कि ये वाला लोएस्ट स्ट्रक्चर नहीं है। सारे सिंगल बॉन्ड है ना, क्यों नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है। अब मैं डबल बॉन्ड रखूंगा, 1 2 ऑक्सीजन, 1 2 ऑक्सीजन। 18 में से 6 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिए, 18 में से मैंने 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ठीक है। अब बचे कितने, 12 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 डन। मिस्टेक करी कुछ में नहीं, ठीक है, कुछ गड़बड़ करी मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ यहाँ 1, यहाँ 4 रखेंगे, 4। 18 में से 6 गए थे, 12 में से 4 गए, 8। अब 6 चले गए, 2 बचे, यहाँ रख दो। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट डन हो गया, इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट डन हो गया, और इस वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट डन हो गया, मतलब ये करेक्ट है। तो मैं बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसका। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, यहाँ लोन पेयर आएगा, सिंगल बॉन्ड O, यहाँ 3 लोन पेयर आएंगे,
यहाँ 2 लोन पेयर आएगा। ठीक है जी, किससे नहीं हुआ? आ गया समझ में? आ गया समझ में? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, अब कैटायन वाला दे दिया मैंने आप लोगों को। पहले टीवी निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन के 4, बट यहाँ पे +1 है। +1 का मतलब आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से घटा दोगे, तो -1 कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन। अब आपने 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि हाइड्रोजन का डुप्लेट और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, हाइड्रोजन इज़ अ मोनोवैलेंट एटम और ये एक ही बॉन्ड बनाएगा और हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे रहेगा। तो नाइट्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन, 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 स्क्वायर ब्रैकेट डाल रहा हूँ, माइनस नहीं प्लस आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन का डुप्लेट डन, हाइड्रोजन का डुप्लेट डन, डुप्लेट डन, डुप्लेट डन, नाइट्रोजन आपका सेट हो गया। तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता NH4, फिर NH3 ही होगा। फिर तो इसी बात पे NH3 भी कर लो। हाँ जी, पूछो पूछो, मुझसे पूछो पूछो, क्या हो गया, पूछो। क्या चीज़? इंटू 4 क्यों नहीं हुआ? हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 में कितने हो जाएंगे? ये वाला करो, NO2 माइनस, NH से शुरुआत कर लेंगे। NO2 माइनस करना है, जल्दी कीजिए। तुम सीधा ही रख देते हो डबल बॉन्ड। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के होते हैं 5, ऑक्सीजन के 6, 2 ऑक्सीजन है 2 × 6, माइनस है तो +1 करेंगे, तो 6 2 12, 13, 13 + 5 18। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन दोनों में से, तो नाइट्रोजन सेंटर में आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, पूरे पे माइनस साइन है। अब 18 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। मैंने क्या बोला था? मिनिमम एक बॉन्ड पेयर से स्टार्ट करना। ठीक है जी, तो 18 में से 4 चले गए, 14 बचे, 14 में से 6 यहाँ रख दिए, 8 बचा, 8 में से 6 यहाँ रख दिया, 2 बचा, उसको यहाँ रख दो। तो ऑक्सीजन तो सेट हो गया है, ऑक्सीजन तो सेट हो गया है, बट नाइट्रोजन सेट नहीं हुआ, तो ये गलत है। मतलब ये नहीं होता, गलत नहीं, ये नहीं होता। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे एक ही बॉन्ड पेयर रखता हूँ, यहाँ पे 2 रख देता हूँ। तो 10 18 में से कितने चले गए? 6, 12 बचे, 1 2 3 4, 12 में से 4 चले गए, 8 बचे, 1 2 3 4 5 6, 2 बचे। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये आपका NO2 माइनस का स्ट्रक्चर आ गया है। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड O, बाकी 3 लोन पेयर है, डबल बॉन्ड O 2 लोन पेयर है, और ये आ गया माइनस। आया समझ में? आया समझ में?
किसको नहीं समझ आया भाई पूछ लो, किसको नहीं समझ में आया पूछ लो। सिंपल दे रहा हूं NH3, क्या चीज? हीज लाइफ हीज रूल, क्या ही बोलूं। NH3 करो, उसके बाद SO4 2 माइनस करना है, सल्फेट। हाँ जी सल्फेट। अरे सल्फर और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप के तो हैं, सल्फर और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप के हैं, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होंगे वही सल्फर के होंगे। चलो करो, आज ही करना है। सॉरी NH3 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 5, हाइड्रोजन के 3, 8, नाइट्रोजन को सेंटर में रखो। अब इधर देखो एक बारी, इधर देखो, इधर देखो, आपको जो रूल लिखवाया गया है उसमें ये लिखा है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सेंटर पे लाओ। एक रूल लिखवाया था स्टेप 3, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंटर पे आएगा। अरे यही लिखवाया था मैंने, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंटर, ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो रूल वो था जो स्टेप 3 का रूल था, वो जनरल था, एक्सेप्शन कुछ नहीं है भाई, ठीक है ना। अब ये लो यहाँ रख दिया, 8 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन का डुप्लेट डन, हाइड्रोजन सेट हो गया है, हाइड्रोजन सेट हो गया है, नाइट्रोजन तो तगड़ा ही सेट हुआ है, ठीक है भाई। -2 माइनस कहाँ चला गया? 2 माइनस ऊपर लगाया, नीचे कौन लगाएगा? मैं लगाऊं? 8th SO4 2 माइनस। अब इधर देखो, इधर देखो भाई, TVE, सल्फर और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में होंगे उतने ही सल्फर में होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6, 4 सल्फर का आ गया, सॉरी 4 ऑक्सीजन का आ गया, 1 सल्फर का आ गया, मतलब 5 आ गया एटम। 5 × 6, अरे भाई ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप से है ना, तो इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ले लिए ना मैंने, 5 × 6 करूँगा ना। अरे छोड़ो भाई, सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है, ऑक्सीजन के भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग चल रहा था मैं। अरे 4 × 6 करा ना, तो 6 + 6 + 6 + 6, 5 बार 6 ऐड करोगे ना आप, -2 का मतलब +2, तो कितना आ रहा था आपका? 4 से 24, 32 आ रहा है। अब आपने 32 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर को सेंटर में रखेंगे, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, 2 माइनस स्टार्ट, एक बॉन्ड पे सबके बीच में रख देते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करूंगा। तो 32 में से कितने चले गए? 8 चले गए, 2 2 4 2 6 2 8, 32 में से 8 गए, 24 बचे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ऑक्सीजन का ऑक्टेट डन, ऑक्सीजन का ऑक्टेट डन, ऑक्सीजन का ऑक्टेट डन, ऑक्सीजन का ऑक्टेट डन, सल्फर भी सेट हो गया आपका, ठीक है जी। तो सल्फर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, O माइनस, सॉरी O माइनस मत लिखो, O O O, यही बना ना, बाकी लोन पे। तो आई थिंक मैंने काफ़ी एग्जांपल्स करवा लिए हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, मतलब आपको समझाने के लिए। अब आप हेडिंग डालें फॉर्मल चार्ज।
हेडिंग डाले फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल या आयन। डेफिनेशन लिख लो जल्दी से। द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम, द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम in a molecule, the formal charge on an atom in a molecule or ion, the formal charge on an atom in a molecule or ion is defined as the difference, is defined as the difference between formal charge on an atom in a molecule or ion is defined as the difference between the number of valence electrons, is defined as the difference between the number of valence electrons of that atom, is defined as the difference between the number of valence electrons of that atom in the free state, and the number of electrons, and the number of electrons assigned, and the number of electrons assigned to that atom, and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure, and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure, comma, assuming that in each shared pair of electrons, assuming that in each shared pair of electrons, assuming that in each shared pair of electrons the atom has one electron of its own, assuming that in each shared pair of electrons the atom has one electron of its own, and the lone pair on it, and the lone pair on it belongs to it completely. लिख लिया सबने? एक बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, थोड़ा जल्दी बोला था मैंने। द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम in the free state and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure, assuming that in each shared pair of electrons the atom has one electron of its own and the lone pair on it belongs to it completely. सिंपल शब्दों में फॉर्मल चार्ज आपको मॉलिक्यूल के हर एक एटम का इंडिविजुअल चार्ज बताता है। जैसे अगर मैं O3, इसकी मुझे ज़रूरत है इसलिए रब नहीं करा, पहला क्वेश्चन O3 से लेते हैं। जैसे O3 में 3 ऑक्सीजन है, अभी O3 पे आपको कुछ चार्ज नज़र आ रहा है? न्यूट्रल है ना आपके हिसाब से, जीरो है ना। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या होता है, इस मॉलिक्यूल के अंदर हर एक एटम का, हर एक ऑक्सीजन एटम का जो इंडिविजुअल चार्ज है उसे फॉर्मल चार्ज बोला जाता है। तो कहने को तो O3 पे चार्ज जीरो है, बट मैं आपको कहता हूँ इन तीनों ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन में जीरो चार्ज है, एक ऑक्सीजन में +1 है, एक ऑक्सीजन में -1 है। तो वो निकालना सीखना है। तो पहले तो फॉर्मूला देखते हैं। कैसे निकालेंगे फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स of atom in neutral state minus total number of lone pair of electrons
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सिंपल है, ये याद रखना बड़ा आसान है, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से माइनस कर देने, और एक एटम, ध्यान सुनना, एक एटम एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर देना है वो माइनस कर देने हैं। ठीक है, बस ये अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो। एक बार देख लो, इधर देख लो। पहले इसका निकालते हैं चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ O1, सबसे पहले क्या करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखोगे जब एटम आपका न्यूट्रल स्टेट में होगा। तो ऑक्सीजन न्यूट्रल स्टेट, ठीक है, ऑक्सीजन जब आइसोलेटेड स्टेट में होता है तो कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 होते हैं। 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? लोन पेयर कितने हैं? 2। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे ना। तो 6 माइनस 4, फिर माइनस हाफ। भाई इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं इस ऑक्सीजन ने? 2 ऑक्सीजन का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4। तो एक बात बताओ, सुनना जरा ध्यान से। आपने बोला कि सर ये वाला ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है यहां पर। अगर मैं इस 4 इलेक्ट्रॉन का आधा कर दूं तो 2 आ जाएंगे। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन प्योरली इस ऑक्सीजन से आएंगे ना, इसलिए हाफ करा हुआ यहां पर। 6 माइनस 4 माइनस 2 0 आ गया, यानी कि इस वाले ऑक्सीजन पे चार्ज 0 है। फॉर्मल चार्ज ऑफ O2 इसका निकाल रहे हैं। पहले तो 6 आना ही आना है, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही लोन पेयर है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ। इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं टोटल? 3। तो 3 इंटू 6, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए ना। सारा रोल इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। वो तो बॉन्ड मैं आपको इसलिए काउंट करा रहा हूं ताकि इलेक्ट्रॉन काउंट करवा पाऊं, सॉरी। तो इधर कितने आ गए? 6 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1। सही है, सही है। तो सेकंड वाले ऑक्सीजन पे +1 आ गया। हाँ जी बोलो, क्या नहीं समझ आया? पहला वाला आ गया, पहला वाला भी नहीं आया? क्या कर रहा है? मन ने बुलाया होगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम इन न्यूट्रल स्टेट। जब ये वाला एटम अगर अकेला पड़ा हुआ है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 6 लिख दिया। फिर माइनस करना है आपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के। इस वाले ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर नजर आ रहे हैं तुमको? 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 में कितने हो जाएंगे? 4 माइनस कर दिया। फिर माइनस हाफ। अब बताओ ये वाला ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? अरे यार, बॉन्ड पेयर अलग होता है, लोन पेयर अलग होता है। 2 बॉन्ड पेयर बना रहा है। 2 बॉन्ड पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 4 को डिवाइड कर दिया हाफ से। तो यही करा है मैंने नीचे वाले के अंदर भी। +1 आ गया। O3 चलते हैं, थोड़ा तेज बढ़ा दो, तुम लोग घबरा जाते हो। चलो धीरे बताता हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ इस वाले ऑक्सीजन के 6 ही रहेंगे। माइनस लोन पेयर कितने हैं तीसरे वाले पर? इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? कितने बॉन्ड बना रहा है? सही है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अरे एक ही बॉन्ड बना रहा है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। -1 आ गया। तो कहने को तो O3 पे कोई चार्ज ही नहीं था, कहने को तो O3 पे कोई चार्ज ही नहीं था। बट जब आपने तीनों ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करा, पहले वाले पे 0 आ गया, दूसरे वाले पे +1 आ गया, तीसरे वाले पे -1 आ गया। तो इधर देखो, +1 -1 न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, तभी तो O3 पे चार्ज 0 है। ठीक है जी, तो आज यहीं रोकते हैं। आप घर से ट्राई करके लाना CO3 का,
होमवर्क लिख लो, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, पहले होमवर्क लिखो। कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच ऑक्सीजन। I said write homework first. Calculate the formal charge of each oxygen atom present in CO3 2 minus. हाँ जी, CO3 2 माइनस के अंदर तीनों ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज आपने निकालना है। ठीक है जी। तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने से पहले आपके पास लुईस स्ट्रक्चर का होना जरूरी है, और लुईस स्ट्रक्चर आप लोगों ने ड्रॉ करना सीख लिया है, तो आप बस कॉपी कर लेना पीछे से और कैलकुलेट करना। CO3 2 माइनस कार्बोनेट, CO3 2 माइनस को कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है जी। तो आज यहीं रोकते हैं क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।